Chalo. Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Grade 10, History, Chapter Europe. Yesterday we have seen one presentation and we solved worksheet. Okay, 2 days we spent for that. So now we are going further. Okay. Uh, Srijan, unmute beta. Good morning. Good morning, ma'am. Hanji beta, tell me page number. And topic. You have attended yesterday's class. Yes, ma'am. I think page number 17, if I'm right. Yes, ma'am. From second paragraph, I think Yes, so. in the German. Start reading. Srijan, start reading. Better take a pen or pencil in your hand. Some of the important lines to be underlined. Okay. And if you are unable to understand any word or any line, please raise hand in between. I will help you out. Okay. Yes. Start, beta. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. Yes, we have seen yesterday that many of the people, those who are revolutionaries and those who want liberty, they come together. Okay, and yesterday you have highlighted the demands, the 5 demands, 5 marks answer from the first paragraph. Now, what further revolutionaries and liberalism did? अभी आपने पढ़ा एक लाइन पढ़ी है that German region a larger number of political association whose member were middle class people. मिडिल क्लास की जब हम बात करेंगे इट मींस एजुकेटेड पीपल कम टुगेदर एंड दे गैदर्ड इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. अभिषेक के पीछे बैकग्राउंड लगाया उसने डिजिटल बैकग्राउंड. ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 18. दिस इज पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. एंड वेन्यू एमपीएच, नॉट एमपीएच, वेन्यू सेंट पॉल चर्च. यहां पर नेशनल असेंबली होने वाली है. दिस इज द फर्स्ट लाइन विच सृजन हैज रेड. ओके, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में. अच्छा, इसको ना जरा ना 10 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व करो, अच्छे से देखो. हाँ, then I will ask some questions. All of you are having your book na? Yes. 10 seconds. ये उधर का एमपीएच है, जैसे आपके एमपीएच में है ना, तो ये उधर का एमपीएच है, हॉल है. हाँ अभिषेक, अभिषेक अभी कुछ बताना मत पिक्चर के बारे में. हाँ अभिषेक. पिक्चर के बारे में बताना था, बाद में अभी रुक बता जा, दूंगा. 2-3 सेकेंड रुक जा, 2-3 सेकेंड रुक जा. लेट मी सी द रेज्ड हैंड्स. ओके, 4 हैंड्स. थैंक यू वेरी मच. कुछ खास नहीं वैसे मैंने पूछना. चलो. Shan, good morning beta. Shan, whatever you have seen. Ma'am, the picture of Germania. Okay. Ma'am, the flags of Germany. Okay, very good. And ma'am, some people are standing are in the middle of the hall. Yes, gallery. Shan, gallery कहते हैं उसको. Some of the people are standing in the gallery. बस इस लाइन को ध्यान रखना. Now we are going to further. हाँ अभिषेक बेटा. All are men. All are men. हाँ, अरे गैलरी में भी है कोई. मैम यहाँ पे फीमेल फिगर भी है, एलिगरी. फीमेल फिगर दिया है, एलिगरी. ठीक है, ठीक है. चलो सृजन, नेक्स्ट बेटा. अभी आपको कुछ एक पता चल गया लाइनें कि नेशनल असेंबली में इकट्ठे हुए हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में है एंड सम ऑफ द पीपल आर स्टैंडिंग इन गैलरी. आपने आंसर भी बता दिया, दे आर वुमेन. यस सृजन, कंटिन्यू, ध्यान से सुनते जाना. आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे. हाँ जी सृजन. सृजन कंटिन्यू बेटा, सेकेंड लाइन. On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. चलो जी, 831 मेंबर इकट्ठे हो गए हैं, नेशनल असेंबली बनाई है सेंट पॉल चर्च में और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. 4 things सृजन हैज रेड. मींस
On 18 May 1848, 1 mark answer. कितने मेंबर? 831. Second answer. Frankfurt Parliament, venue, third answer. Where? St. Paul Church. 4 answers in one line. Please mark. When they gathered, where they gathered, why they gathered, and who were gathered over there. 4 answers. Yes, Rijan. They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. चलो जी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे हैं, वो बना लिया है ऑलमोस्ट. हेडेड बाय पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होगी. देखो कब वो जागे हैं जर्मन के पीपल, 1848 में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में. 100 साल से भी ज्यादा पीछे हैं हम इनसे. जर्मन फ्रांस कितना आगे? 1848, हमारा 1948, और 50 में जाके इंप्लीमेंट हुआ था. तो हाउ दे मच अवेयर? तो जर्मन पीपल दे हैव मेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन. एक पार्लियामेंट भी बनाई है. हमें पार्लियामेंट जाके 100 साल बाद पता चला पार्लियामेंट क्या होती है. पार्लियामेंट बट सब्जेक्ट टू मोनार्क. सृजन ने पढ़ा मोनार्क होगा, किंग होगा, बट लोगों की डिमांड पर कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, पार्लियामेंट भी होगी. शो मी थम्स अप इफ दीज थिंग्स क्लियर टू यू. मैं पूछूंगी आपसे आगे मैंने क्या पढ़ाया. शो मी थम्स अप. अनुज थोड़ा कैमरा ठीक कर बेटा. Okay, now 3 things you have done: who are gathered, why they are gathered, how many people were gathered, and what happened over there. वहां पे क्या होने वाला है. मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया उन्होंने, पार्लियामेंट भी चाहिए, बट विद मोनार्क. एकदम से राजा थोड़ी जाएगा, कितने सालों से, कितनी सदियों से मोनार्क था वहां पर, किंग था, वो एकदम से थोड़ी जाएगा. वो अभी भी नहीं जाएगा. इतना प्रोसेशन इकट्ठा हो गया. प्रोसेशन समझते हो? जुलूस, इतना पूरा, इतना ग्रुप पीपल इकट्ठे हैं वहां पर. राजा अभी भी कुछ गड़बड़ करेगा सेंट पॉल चर्च में. कोई राजा नहीं चाहेगा कि उससे पावर ले ली जाए. जैसे कोई मिनिस्टर नहीं चाहता ना उससे पावर ले ली जाए. कुर्सी का सबको लालच है, कुर्सी से सबको प्यार है, तो राजा भी जल्दी से मानने वाला नहीं है. हाँ जी सृजन, व्हाट हैपेंड देयर? When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. चलो जी, जैसे ही उसको क्राउन पहनाया जाने लगा विलियम को, उसके मन में पता नहीं क्या आ गया. ही रिजेक्टेड, उसने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अंदर से उसके मन में था ये क्राउन सिर्फ नाम का है. इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, अपनी असेंबली बना ली, अपनी पार्लियामेंट बना रही है. पार्लियामेंट तो मतलब पावर टू पीपल, लोग खुद ही रूल्स बनाएंगे. उसके मन में पता नहीं क्या आया. ही कंबाइंड हैंड्स विद द अदर मोनार्क एंड अपोज द असेंबली. असेंबली को उसने मना कर दिया और बाकी किंग के साथ जुड़ गया. सारे किंग्स इकट्ठे हो गए और असेंबली को खत्म करने वाले. इनको पसंद नहीं, अंदर से नियति नहीं है इनकी कि नेशनल असेंबली हो, कि पावर टू पीपल आए. हाँ जी, व्हाट हैपेंड देन सृजन? फिर क्या हुआ? While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. चलो जी. while the opposition of aristocracy military becomes stronger. अब लोग कमजोर हो गए और मोनार्क स्ट्रांग हो गया. लोगों की किसी ने नहीं सुनी और मोनार्क स्ट्रांग हो गया. द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड. और पार्लियामेंट को खत्म, अभी बनी भी नहीं है ढंग से, और राजा ने पार्लियामेंट को खत्म कर दिया. हाँ पुरुषार्थ? यस, मैंने ये पूछना था कि यहाँ पर तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब तो जर्मनी सब्सिस्टेंस क्राइसिस फेस कर रहा था. सब कुछ अच्छा चल रहा था 1848 में. हम यस मैम, बस मैंने ये पूछना था, यहाँ पर तो कहीं भी नहीं आया क्राइसिस, तो अब आपने बताया कि मतलब उनने मोनार्क के साथ हैंड मिला लिया. हाँ, बाकी किंग के साथ उसने हैंड मिला लिया और बोलता कि मुझे क्राउन नहीं चाहिए. उसको नफरत थी असेंबली से. वो अपना ताज, अपनी कुर्सी, अपना सिंहासन नहीं छोड़ना चाहता था. बट पीपल जो पढ़े लिखे थे वो अब अवेयर हो चुके थे, वो अपने राइट नहीं छोड़ना चाहते थे. देन व्हाट हैपेंड? व्हाट वाज द नेक्स्ट सीन? अगले सीन में क्या हुआ सृजन? The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support.
लेकिन पीपल पढ़े लिखे मानने वाले नहीं थे. दे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंट द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स एंड द पीजेंट. वो पीजेंट और वर्कर्स की डिमांड पर टिके हुए थे. वो राजा की बात नहीं मान रहे थे. नाउ दे वांट देयर राइट्स. They want the welfare of the peasants and artisans and workers. They want constitution and parliament. They didn't need any kind of king or monarch. Monarch didn't want any kind of assembly. तो अच्छा खासा झगड़ा हो गया. ये जो सुंदर सी दिख रही है ना सेंट पॉल चर्च, वहां पर क्या होने वाला है. नाउ सी 831 पीपल वर सिटिंग ओवर दे. कितना बड़ा हॉल है, देखो कितनी बड़ी चर्च है वो. हाँ सृजन, फिर क्या हुआ वहां पर? देन व्हाट हैपेंड? In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. चलो जी, एंड में ट्रूप्स बुलवा लिए. ट्रूप्स का मीनिंग लिखो आर्मी. राजा नहीं मानने वाला था. ट्रूप्स मीन्स आर्मी. अनुज नहीं लिखोगे बेटा? Write down its meaning, Anuj. I'm telling to you, beta. Write down its meaning. हाँ सार्थक. Yes, बेटा सार्थक. Ma'am, in second last line it is written consequently lost their support. तो मैम किसने support lost की? आप देखो ऊपर बात किसकी हो रही है. In the end, sorry, उसकी ऊपर वाली लाइन है ना. The parliament was dominated by middle class people who resisted the demands of the workers and artists and consequently lost their support. उनको support कम हो गई. मिडिल क्लास पीपल को ही वर्कर्स की सपोर्ट भी कम हो गई. और फिर राजा भी असेंबली को डिसबैंड करके चला गया. अब असेंबली को डिसबैंड करना बहुत बड़ी मेहनत से पढ़े लिखे लोग पहुंचे थे वहां. मिडिल क्लास बड़ी मेहनत से पहुंची थी वहां. नाउ एट द एंड द किंग इज डिसबैंडिंग द असेंबली. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? हाँ जी, मेधा पढ़ बेटा आगे. लास्ट पैराग्राफ यू विल रीड. द इशू ऑफ extending Medha, from where Medha is reading na, please write one question. Here you can see the space na. Write here question. What was the contribution of women? Book pay only, not on copy. What was the contribution of women regarding feminist movement? Regarding feminist movement. अभी मेधा पढ़ेगी कि 3 पॉइंट 3 मार्क्स आंसर. यू विल डायरेक्टली लर्न फ्रॉम हेयर. वी विल नॉट राइट दिस क्वेश्चन ऑन कॉपी. सृजन वांट टू से समथिंग? यू रेज्ड हैंड. ओके, पुरुषार्थ यू वांट टू समथिंग? हाँ पुरुषार्थ. What is after feminist movement? तू बता ना फेमिनिस्ट क्या है. No, I'm asking in question what is after feminist? अच्छा, व्हाट इज आफ्टर फेमिनिस्ट? मुझे नहीं पता मैंने क्या. Yes, ma'am. आई डोंट नो. सुखनू रिपीट कर क्वेश्चन. Ma'am, the question is, what was the contribution of women regarding feminist movement? रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट. पुरुषार्थ. Okay, ma'am. Thank you. वेलकम बेटा. अब फेमिनिस्ट मूवमेंट आपको पता है, मैं नहीं बताने वाली हूँ. हाँ, उर्वीश बताएगा. उर्वीश, व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट? उर्वीश डोगरा, व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट? See 5 hands. सानिया. Can you read? फेमिनिस्ट मूवमेंट बेटा, फेमिनिस्ट मूवमेंट. उर्वीश. हाँ जी सानिया, फेमिनिस्ट मूवमेंट. Ma'am, it is the awareness of women's right based on the political and economic equality between genders. ओके, कनिश अनम्यूट करा मैंने तुझे. Ma'am, it is regarding, in simple words, we can say that the women are now aware of their rights and they want that their rights should be given to them. And they want a proper sense of equality in the society. एज मैन की तरह उनको भी राइट मिलने चाहिए. तो सिंपली सी बात है, जो मूवमेंट फीमेल लॉन्च करते हैं दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट. हाँ जी कशिश. And I wanted to say that equality to women as men. हाँ, एज मैन मीन्स इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स. हाँ जी कंटिन्यू बेटा. हु वर रीडिंग? सानिया तू पढ़ रही थी. हु वर रीडिंग? मेधा. हाँ मेधा पढ़ो बेटा, कंटिन्यू.
The issues of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years. एक्चुअली हमेशा से ही चाहे फ्रांस जर्मनी ने काफी तरक्की कर ली थी बट वुमेन डिडंट गेट राइट पॉलिटिकल राइट्स वेरी इजीली. हाँ जी मेधा. Women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. Yes, they have made their own association, they have made their groups, they show demonstration, and even they participate in the movement to get their political rights equally as all genders. Yes. Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. लेकिन Women फिर were भी जब सेंट admitted. पॉल चर्च में असेंबली लगी थी फिर भी उनको राइट नहीं था. एंड व्हाट हैपेंड ओवर देयर, अभी मैं यही बताने वाली थी. गैलरी में कौन खड़ा है? हाँ जी मेधा. Church of St. Paul, women were admitted only as an observer to stand in the visitors gallery. They were only observers. They will not participate. They will not speak any word. They will only observer and they will stand upside the gallery. सिर्फ ऊपर खड़े होकर वो देखेंगे कि 831 people क्या कर रहे हैं. They are not having any kind of right to speak against or in favor of. हाँ अभिषेक. हाँ बेटा. हम जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि राजा के मंत्री नीचे बैठे होते हैं और ऊपर उनके आम लोग होते हैं, वैसे कुछ होगा. हाँ वैसे ही कुछ था. आप फोटो में देखो ना, जो एलिगरी के साथ वाली जो भी लेडी जो भी पीपल है ना, दोज आर, देखो मैं दिखाती हूँ आपको फोटो पे. विमेन भी है मैम, वो विमेन भी होंगे उसके अंदर. ये देखो आपको फोटो दिख रही है, मैं आपको बताती हूँ. यस मैम. हियर इन दिस पिक्चर दीज आर, जो नीचे बैठे हैं मेन. Those upside the gallery, those who are sitting this side and this side, right side Yes, and ma'am. left side. This is the gallery and all the women were standing over there as a spectator, as audience Okay. only. They were not allowed to take part in decision making. हाँ पुरुषार्थ. मैम वो 831 पीपल से अलग थी वुमेन 831 या नहीं, फिर वो भी 831 के अंदर ही थी? 831 के अंदर ही थी वो. Yes, continue बेटा मेधा. Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old orders. Yes, conservative people ने सारी कोशिश कर ली लिबरल की मूवमेंट को दबाने की, बट दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर. लेकिन फिर भी वो पुराना ऑर्डर ला नहीं पाए. कंजर्वेटिव वो वाला पुराना ऑर्डर ला नहीं पाए क्योंकि लिबरलिज्म एंड एजुकेटेड पीपल काफी आगे निकल चुके थे. Yes. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting consciousness to the liberal nationalist revolutionaries. कॉन्शियसनेस नहीं लिखा, कंसेशन लिखा. कंसेशन. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज व्हेन यू वर चाइल्ड, हाँ जब आप छोटे बच्चे थे ना, तो तब क्या था, कनिष्क को चाहिए थी बैटरी वाली गाड़ी 20,000 वाली. ठीक है, बट पेरेंट्स ने बोला नहीं अभी नहीं बेटा, इतनी कॉस्टली है, अभी नहीं, ये टूट जाएगी और फिर इसको वो चंडीगढ़ लेके जाना पड़ेगा बैटरी डलवाने के लिए, काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब लेके. तो अभी ऐसा कर, तू एक रिमोट वाली कार ले ले. तो 20,000 के बजाय उसको 1,000 वाली रिमोट कार दे दी. तो कनिष्क बच्चा था और चुप हो गया. जब हम बच्चे को चुप करवाने के लिए सपोज वी आर गिविंग सम ऑफ द सॉफ्ट टॉय और सम ऑफ द वेरी चीप टॉयज और एनी काइंड ऑफ चॉकलेट, वही हाल इन्होंने वहां किया. मोनार्क समझ तो चुके थे दैट एजुकेटेड पीपल विल नॉट गो बैक, दे विल नॉट कीप क्वाइट, क्योंकि रेवोल्यूशन तो वो करेंगे, वो तंग आ चुके हैं मोनार्क से. तो उनको कुछ कंसेशन दे दी. मेधा ने पढ़ा कुछ ऐसे ही समझाने बुझाने के लिए, एक बच्चे को लॉलीपॉप दे देते हैं ना, तो ऐसे ही उनको कंसेशन दे दी कि चलो आपको हम पार्लियामेंट तो नहीं बनाएंगे, इसके बदले में हम आपको ये दे देते हैं. नाउ यू विल रिमाइंड दिस लाइन फॉर 2-3 months more because the same kind of line will appear in nationalism in India chapter. तब हमने भी फुल इंडिपेंडेंस मांगी थी, बट ब्रिटिशर्स ने हमें एक छोटा सा लॉलीपॉप हाथ में थमा दिया था, रिमोट कार, बैटरी वाली गाड़ी नहीं दी थी. ये याद रखना. देन वी विल रिमाइंड दिस लाइन अगेन.
नाउ अगेन रेवोल्यूशनरी की बात थोड़ी माननी पड़ेगी बिकॉज दे आर नॉट गोइंग बैक, वो पीछे नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मोनार्क ने इनको समझाने के लिए मेधा ने पढ़ा, कंसेशन दे दिया। नाउ व्हाट वाज द कंसेशन? मेधा कंटिन्यू। मेधा कंटिन्यू बेटा, raise your hands, where are you? Here 35 people are on my screen. Yes Medha, yes continue. Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchs of the Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. हाँ, 1850 में कुछ खास हुआ था, किसी को याद है? 1815 में कुछ खास हुआ था, सार्थक बता सकता है मुझे? 1815 में कुछ खास हुआ था, 5 मार्क्स आंसर। यस सानिया। मैम नेपोलियन की हुआ था बैटल, तो वो 1804 में हुआ था। वियना कांग्रेस। हाँ, वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में। ओके, मैं अनम्यूट किया मैंने, शबनम बोलो ना, अनम्यूट कर रही हूँ। मैम सिलेशियन वीवर्स का भी हुआ था। 1848 में हुआ था। कहाँ? एक्चुअली आपने मुझे, मैंने किया आपको अनम्यूट, मुझे अनम्यूट कर दिया मैम आपने। बोलो फिर पुरुषार्थ बोलो ना, मैंने अनम्यूट किया तो। यस मैम। मैम 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी और मतलब उसके बाद न्यू कंजर्वेटिज्म रेजीम शुरू हुए थे। हाँ, यस उर्वीश, थैंक यू, मुझे समझ आ गई उर्वीश ने भी क्या कहना है कि आफ्टर 1848 the autocratic monarchs central and eastern Europe began to introduce changes that had already taken place in 1815. बाकी यूरोप में भी वो सारे चेंजेस आने शुरू हो गए थे, मोनार्क काफी कमजोर हो चुके थे, रेवोल्यूशनरीज और लिबरल्स काफी आगे बढ़ चुके थे। नाउ व्हाट हैपेंड? हाँ जी बेटा, हाँ जी। बैटल ऑफ वाटरलू भी 1815 में हुई थी? नहीं, उससे पहले हो गई थी वो, 1814 में कि 1813 में हुई थी, क्योंकि तभी नेपोलियन हारा था। 1813 के 1814 में हुई थी। मैं बता देती हूँ, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ अभिषेक। हम 14 में हुई थी। हाँ 1814 में, ठीक है। तो तभी 1815 में सब इकट्ठे होके, डेलीगेट्स इकट्ठे होके अब कुछ फैसला करने वाले हैं यूरोप की किस्मत का। एंड दे वांटेड टू रिस्टोर कंजर्वेटिज्म, बट कंजर्वेटिज्म भी समझ गए हैं रेवोल्यूशनरीज रुकने वाले नहीं हैं। व्हाट हैपेंड फर्दर? Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominance and in Russia. चलो रशिया में थोड़ा सा उनको कंसेशन देने के लिए, एक रिमोट वाली गाड़ी देने के लिए उन्होंने क्या किया, सर्फडम हटा दिया। चलो स्लेवरी खत्म हो गई, ऐसे उनको चुप करवाने के लिए। हाँ जी। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. और 1867 में हंगेरियंस को भी थोड़ी बहुत इन्होंने लिबर्टी दे दी। बट अभी रेवोल्यूशनरीज चुप नहीं हुए हैं। जैसे 1857 में हमने रिवोल्ट किया था ना, यू हैव डन इन ग्रेड 8, 1857 रिवोल्ट ऑल ओवर इंडिया इट हैपेंस, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, पंजाब, लखनऊ, एवरीवेयर इट वाज हैपेंड एंड वी वर डिफीटेड इन दैट रिवोल्ट। बट कहीं ना कहीं स्पार्कलिंग छोड़ दी थी हमने, सो दैट ब्रिटिशर कुड रियलाइज दैट इंडिया विल नॉट गो बैक नाउ। यस, दिस मच वी हैव डन। हाँ पुरुषार्थ बेटा। हम रशिया तो ग्रेट पावर्स का ही वो था, एक पार्ट था वो भी। हाँ एक पार्ट था ना, उसमें भी वो हो रहे थे, उसमें भी वो तो हो रहे थे, लेकिन रशिया देखो बेटा, यहाँ पर रशिया अलग है, प्रशिया अलग है। आप लोग जो यूरोप पढ़ रहे, नहीं रशिया हमने पहले पढ़ा हुआ था, ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया एंड हाँ, तो उनको दिखाने के लिए ना, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए लाइन लिखी, हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस इन 1967, और ऊपर वाली लाइन में है कि हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया, यहाँ पर बॉन्डेड लेबर खत्म कर दी। ये कहने के लिए कि अगर रशिया में ऐसा हो सकता है, अगर इस एरिया में ऐसा हो सकता है, तो बाकी एरियाज में भी हम लोग कर देंगे। सिर्फ एक दिलासा दिया, समझे, एक दिलासा दिया सिर्फ रेवोल्यूशनरीज को। हाँ गणेश बेटा। मैम इसमें ये सब जो हमें दिया है कि ऑटोनॉमी, सर्फडम, ये सब लेबर वगैरह बंद किए मैम, और ये सब कंसेशंस है। हाँ ये सब कंसेशन है। हाँ ये सब कंसेशन है।
अब राजा के मूड का कोई पता नहीं, अब सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे हुए थे सारे, उसको ताज पहनाया जाने लगा और वो बिगड़ गया, बाकी राजाओं को बुला लाया और बोलता है कि नहीं ऐसे मैंने ताज नहीं पहना, मैं तो अपने हाथ काट के दे दूंगा, इनको पार्लियामेंट बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो मुझे कौन पूछेगा। तो ऐसे इनको थोड़ा सा लारा लगाने के लिए एक रिमोट वाली गाड़ी दे दी है, बैटरी वाली गाड़ी अभी नहीं मिली है, वो आगे जाके मिलेगी रेवोल्यूशनरीज को। चैप्टर अब यूरोप घूम रहे हैं तो यूरोप में नेशनलिज्म ला के ही छोड़ेंगे, राइट। नाउ शो मी थम्स अप इफ दिस कंटेंट इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सानिया, विच क्वेश्चन वी हैव रिटन एट लास्ट? लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा, कॉपी खोलना जरा। राहुल, हृदयजोत, कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मैं रिमूव कर रही हूँ बेटा। वैभव, अनीश, वंश, अनुज बेटा कैमरा ऑन, अनुज कैमरा ऑन, ओके। सानिया टेल मी, अनम्यूट कर रही हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव रिटन। Explain the pathetic condition of Silesian weavers. Okay. Now open your copies. We will write one short question. छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे 3 मार्क्स का। Write down today's date, 12 May. कैमरा ऑन, क्रिश, वंश कर दो, रिमूव कर देती हूँ फिर मैं आपको, फिर समझ आ जाएगी आपको। वैभव और क्रिश अभी भी नहीं सुन रहे हैं, फिर लिख लेना अपने आप 3 मार्क्स आंसर जहां से लिखना है। हाँ शबनम, यस, राइट डाउन टुडेज डेट एंड क्वेश्चन इज। मैम उसके बाद हमने ये भी किया था व्हाट इज नेशनलिज्म क्वेश्चन। वो तो ऐसे ही लिख लिया था ना, प्रेजेंटेशन थी वो, तो 1 मार्क आंसर मैंने आपकी नॉलेज के लिए ऐसे ही दे दिया था। ओके। Yes, question is, अपनी ना बुक खोलना जरा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग। बेटा पेज नंबर 15 पे आना जरा। हंगर, हार्डशिप, रिवोल्ट, दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट रिटन इन कॉपी ना, हालांकि बुक पे अच्छा बन सकता है बट लिटिल वी विल डू दैट। नाउ राइट क्वेश्चन, नॉट ऑन बुक, ऑन कॉपी। Why the year 1830 is? अभिषेक की बुक पे लिखा हमने क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर भी। मैम 1830 नहीं पता, एक क्वेश्चन आपने लिखवाया है इसी वाले उसमें से, हंगर हार्डशिप वाले में से, व्हाई ईयर 1848 वाज सो मच इम्पोर्टेंट। नहीं वो तो 1848 है ना, ऊपर वाले पैराग्राफ की बात कर रही हूँ। 1830 वो 10 साल, वो नहीं किया ना। हाँ जी, प्लीज राइट क्वेश्चन, व्हाई द ईयर 1830s were known as, वंश लिख रहे हो, why the years 1830s were known as, आपके चेहरे बता देते हैं मुझे लिख रहे हो कि नहीं, were known as, were known as the years of great economic hardship in Europe. The years of great economic hardship in Europe. Great economic hardship in Europe. You have done the answer in the first paragraph. Okay, so I am going to give you only and only hints. Answer you will do yourself. अब जहां आपने क्वेश्चन लिखा ना, ब्रैकेट में लिखो आप 5 मार्क्स,
5 marks answer. So now I am going to give you hints only. Right. Krish, camera on करो बेटा, otherwise I am removing you. जहां बिजी हो पहले वो काम कर लो. क्रिश कैमरा ऑफ नहीं करना, ओके? सृजन आप भी बेटा. हाँ जी, नंबर 1, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी. लिखा आप लोगे अपने आप, ये हेडिंग लिखो बस. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. नोट करो बेटा, कॉपी पे नोट करो. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. नंबर 2, एक्सप्लेनेशन आप बुक से करोगे, सेम पैराग्राफ. हाँ सनत, हाँ बेटा. मैम ये आपने अंडरलाइन करवा दिए थे मैम, जो पॉइंट्स हैं हेडिंग हाँ, सर करवा दिए थे, बस वही मैं हिंट कॉपी पे लिखवाने वाली हूँ. कुछ बात होगी तो लिखवाने वाली हूँ ना. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी है. 1848 और 1830s में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. 1848 में कुछ और हुआ था, 1830s उन 10 सालों में यूरोप में कुछ और हुआ था. डिफिकल्ट टाइम था. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, हाँ बुक से ही है वैसे, मैंने वहां भी हाईलाइट करवाया था. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मिडिल क्लास. आप सब बता दोगे फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हाल हुआ था, क्या ड्रॉबैक्स थी, आप सब बता दोगे. if the hint is given to you. Industrialization and the middle class. Third, role of language is common. But the role of common languages. रोल ऑफ कॉमन लैंग्वेज. अच्छा, आप ना ब्रैकेट में हिंट लो. जब आप ये पॉइंट लिखोगे ना, हिंट लो आप. यू विल टेल अबाउट रशियन एंड पॉलिश लैंग्वेज. आप फिर सब बता दोगे, इसी पैराग्राफ में है. ओके, रशियन और पॉलिश लैंग्वेज का क्या चक्कर था. यस अभिषेक. हाँ बेटा. मैम फूड प्राइसेस का भी एक पॉइंट बन सकता है शायद. फूड प्राइसेस आप मिडिल क्लास में डाल दो. फूड प्राइसेस का. ओके मैम, क्योंकि हाई हो गए थे ना. हाँ, कहीं भी डाल सकते हो आप, उसको कहीं भी डाल दो आप. थर्ड, मास माइग्रेशन. मास माइग्रेशन. हाँ नुरीत. यस बेटा. मैम रशियन और पॉलिश लैंग्वेज तो इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में है ना. हाँ, आप ऐसा करो अनुरीत, वैसे मैं भी यही सोच रही थी. थैंक यू वेरी मच अनुरीत. इट मीन्स यू आर माई अवेयर स्टूडेंट. आप वो पॉइंट कट कर दो, वो रिलेट नहीं कर रहा अनुरीत. थैंक यू वेरी मच. वो पॉइंट रिलेट नहीं कर, आप वो पॉइंट कट कर दो. कुछ नहीं होता, कोई कॉपी आपकी गंदी नहीं होगी. आप लैंग्वेज वाला मत लिखो. 1830s का ही मैंने सिर्फ कहना था, तो मैं बीच में दूसरी बात ले गई, तो लैंग्वेज नहीं कहेंगे. आई एम सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गई आपसे, मुझसे. लैंग्वेज वाली बात नहीं कहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मास माइग्रेशन. नाउ फोर्थ पॉइंट. फोर्थ ही है ना. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, अभिषेक का पॉइंट लेते हैं. हाई फूड प्राइजेस. हाई फूड प्राइजेस. ओके. लास्ट वन. रिवोल्ट इन डिफरेंट एरियाज. रीजन लिख लो, एरिया मत लिखो. रिवोल्ट इन डिफरेंट रीजन्स. रिवोल्ट इन डिफरेंट रीजन्स. आप फूड वाली बात को ही कैरी फॉरवर्ड कर लेना और फिर रिवोल्ट हो गया. ठीक है, आसानी से हो जाएगा फिर. हाँ बेटा, यू रेज हैंड, वांट टू से समथिंग. Ma'am, once could you repeat all the points so that I may know that I'm not spelling? Definitely. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ मैम बेटा. एक बार लास्ट वाला पॉइंट का बताना, क्या लिख सकते हैं फिर से.
लास्ट पॉइंट शुरू ऊपर वाले फोर्थ वाले से ले लो कि काफी ज्यादा क्या था, फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, और फिर फूड प्राइसेस जब बढ़ गए हैं, जब महंगाई हो गई है, तो फिर एरियाज में रिवोल्ट ही होंगे। ठीक है, हाँ जी सानिया बेटा, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। मैम जो 5th पॉइंट लिखवाया है उसके लिए हम लास्ट सेकंड लाइन भी लिख सकते हैं, जो है इन द एरियाज वेयर देयर वाज हाई प्राइसेस यूरोपियन अरिस्टोक्रेसी, वो वाला लिख सकते हैं। वो भी लिख सकते हो आप, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब पांचों पॉइंट वाइंड अप करो। नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नंबर 2 मास माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई फूड प्राइसेस, देन रीजन में रिवोल्ट हो गया। आगे पीछे कर सकते हो, इट इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल दैट द फर्स्ट विल बी फर्स्ट एंड द थर्ड विल बी थर्ड, ऊपर नीचे कर सकते हो। नाउ शो मी योर कॉपीज इन कैमरा वेयर यू हैव रिटन हिंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू गानिया, राहुल, निहारिका, सानिया बुक नहीं, मुझे कॉपी चाहिए जहां कॉपी पे लिखा सानिया। अभिषेक नहीं दिख रही हो, तूने डिजिटल लगाया बैकग्राउंड। ओके कनिश, शबनम, तन्वी, राहुल, आहन बुक पे नहीं कॉपी पे लिखना था। सरगुन, आस्था, आस्था आस्था आंसर का है, क्वेश्चन लिखा आस्था, रोल नंबर 2। ओके, ये कैसे लिखा, आप लोग गंदी गंदी कॉपी बना रहे हो। सृजन नहीं दिखेगा, तूने डिजिटल बैकग्राउंड लगाया। ओके सुखनूर, आई डोंट नो व्हाई यू हैव रिटन ऑन द बुक, मैंने कहा था राइट डाउन यू। हाँ सनत ठीक है बेटा। आस्था रोल नंबर 2, गुड बेटा, यस। निहारिका कॉपी नहीं नजर आई मुझे आपकी। ओके मैम आंसर अनुज थोड़ा क्लास के close- बाद लिख देंगे ना, हाँ आंसर क्लास के बाद लिख लेंगे ना कॉपी में, अभी बुक में नोट कर लिया क्वेश्चन और आप उसके पॉइंट। लिखोगे वो बता बाद में। अनुज थोड़ा कॉपी क्लोज करी, थोड़ा नीचे कर। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यस यस। आस्था यस बेटा, रोल नंबर 2 वांट टू से समथिंग। ओके कशिश, ओके कशिश ने इंडेक्स भी बनाया। हाँ ठीक है, पेंसिल से। ओके ओके ओके, नाउ अपडेट इंडेक्स, कुछ भी लिख लो इंडेक्स। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1830s। तन्वी गुड मॉर्निंग बेटा, आज बहुत चुप चुप बैठे हो आप। ऑल ओके? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरा बस चले तो मैं सभी को अनम्यूट कर दूं एक बार, है ना। कुछ बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ये देखो क्रिश, वैसे तो गुड बॉय है ये क्रिश भी नहीं। रोहित ऑल्सो पार्टिसिपेट्स, राहुल पार्टिसिपेट्स, अनीश पार्टिसिपेट्स, आहन पार्टिसिपेट्स। यस आई नो। गानिया बेचारी आती कभी कभी है। अभिषेक, हाँ अभिषेक पार्टिसिपेट्स, गुड। Okay Sanat beta. Chalo, thank you very much. I am going to wind up the class and you will revise the chapter up to where we have done. ठीक है, nothing to be written, कुछ नहीं करना आपने लिखना, बस जो आज लिख लिया that's all. Thank you very much beta, thank you for joining, thank you so much, God bless you.